In the Google, just type Eclipse IDE download. In the first option, you are getting, look, this is the official site for Eclipse, www.eclipse.org, right? This is the official site for Eclipse. You click on this. Right. So now what will happen? You can see here. This is the picture, right? So you can take the pic. If you want, you can take the pic. The Eclipse installer 202103. Look at it very carefully. 202103. 202103 means what? 2021 March. Like includes a JRE for Mac operating system, Windows and Linux. So now what you will do, you will download this file. You will download, once you click on this file will be downloaded. This file will be downloaded. I'm not going to download this file. So this is already downloaded in my system. Let me show you. So you can see this is the Eclipse I have downloaded, and I have downloaded this Eclipse. Right, recently I have downloaded this Eclipse. You can see, I think 4 or 5 days ago. So you go to properties of this file. Yeah, I think it look, Monday, May 17, 8:43 p.m. So just I think 4 of 7 days before I have downloaded, and its size is 102 MB. Its size is what? 102 MB. But look at it, is installer file. It is installer file, right? The size is 102 MB. You can download this installer Eclipse IDE from that particular website. And once you download this 102 MB file size installer, now when you double click on it, right, and when you click on this run button, I'm not clicking on this run because Eclipse is already installed. So when you click on this run button, it almost take 40 to 45 minutes to install the Eclipse. But because a lot of files which are needed from internet, all the Java files supported by Java, all the files supported by your Java compiler, all those files are going to be loaded to your Eclipse IDE. So this is a setup file, right? This is a setup file. And it's simply called installer. So when you now again, one more thing, it's totally depend upon your network speed. Sometimes it may take 15 minutes if your network speed is very good. Sometimes it may take 1.5 hours if your network speed is very slow. So downloading is not a big issue. 102 MB file is not a big issue. But when you install the Eclipse, then it may take time, and it totally depends upon your network speed. Right. So if you have a very good network speed, it will not take so much of time. And once you have installed this Eclipse IDE, then you can search from your search menu. You can write Eclipse. So this Eclipse will appear here. Now, when you click on this Eclipse, now listen carefully. When you click on this Eclipse after installation, first time, and it will ask one question, which I'm just forgetting that question actually what it will ask, but it will ask actually which kind of Eclipse you want to use. So there are a lot of options are there, and you have to choose one option among them. There are a lot of options are there. You have to choose one option among them. So first it will show you Java SE, right? It's clearly mentioned there, Java SE, and then just behind of Java SE, Java E, right? Java E, and just behind the Java E, let's say Eclipse for Python, Eclipse for PHP, Eclipse for C and C++. So remember guys, one thing very clearly, there you have to choose. If you want to develop programs only in core Java, then you can choose Java SC.
standard edition, Java standard edition. But at the same time, if you want to develop advanced Java program, if you want to create websites, then you can go with what Java EE. So if you choose Java EE, what the benefit you will get? It will definitely take a little much more time to install, but you can have an option to develop Java application as well as websites, right? Java application. But if you want to go with, okay, now I am going to develop only core Java programs, so you can choose Java SC. You can choose Java SC for core Java, and you can choose Java EE Enterprise Edition for advanced Java. So once you have chosen Java EE, that means you can develop core Java programs as well as advanced Java programs. So I have chosen Java EE. So look, this Eclipse ID is here. Even you can start your Eclipse ID from here as well, from the start window. You can choose, or better to when you go with this, better to right click and pin to taskbar. बेटर टू गो एंड पिन टू टास्क। अगर आप मेरा टास्क बार देखिए तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो मुझे बहुत जरूरत है वो मैंने टास्क बार में पिन करके रखा है। जैसे क्या क्या है मैं बता रहा हूँ एक बार। ये एचटीएमएल के लिए ब्रैकेट्स आप लोगों को भी बताया है शायद। एचटीएमएल के लिए ब्रैकेट्स है, ये सी प्लस प्लस के लिए डेवलपर सी प्लस प्लस है, ये पाइथन के लिए पाई चार्ट है। ये जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो मेरे को जरूरत पड़ता है, ये सॉरी ये पाइथन है, सॉरी ये पाइथन है, दिस इज पाइथन। ये एडिट प्लस है जावा के लिए, ये ब्राउजर हो गया, ये फिल्मोरा है वीडियो एडिटिंग के लिए, ये एक्लिप्स आईडी है, और ये है मेरा पेंट जहाँ पर हम ऑनलाइन पढ़ाते समय चीजें डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर इक्लिप्स आईडी मैंने रखा हुआ है, तो आप वहां से भी ओपन कर सकते हो, या बेटर टू इन द टास्क बार यहाँ से जैसे ही आप ओपन करोगे देखिए। तो सर हाँ बोलिए। सर इस एडमिनिस्टर किए तो वहाँ पे आईडी फॉर जावा डेवलपर, आईडी एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपमेंट, पे सी सी हाँ प्लस प्लस, तो हाँ वही वही सेकंड सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो चूज। आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपमेंट। अगर आप ये करना चाहते हैं, कोर और एडवांस दोनों चाहते हैं तो ओके सर। देखिए। तो ये इस तरीके से आपका लॉन्च हुआ। बातों बातों में हम भूल गए आपको बताना। तो ये जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करा तो देखिए क्या वही इक्लिप्स आईडी 221 मार्च, मतलब जो लेटेस्ट वर्जन है वो आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे इक्लिप्स 21 ये मेरा जेडीसी का प्रोग्राम जो हम करा रहे हैं, आप सीनियर बैच को जेडीसी का प्रोग्राम जो कर रहे हो वो इस फोल्डर में करा रहे हैं। तो अब इस फोल्डर पे वापस हम कोर जावा का प्रोग्राम नहीं कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ से ही लॉन्च कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे। यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे, उस नया फोल्डर के थ्रू उसमें हम फिर बाकी सारे प्रोग्राम्स वहां पे हम नया फोल्डर बना के लिखेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? बोलिए। नो सर, नो। सर सो यहाँ या फाइन। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ब्राउज करा, जो भी फोल्डर चूज करना है मेरे को चूज कर सकते हैं हम। सपोज एफ ड्राइव है, एफ ड्राइव में सपोज मैंने एक फोल्डर बना लिया, कोर जावा एक्लिप्स, ये फोल्डर मैंने बना लिया, कोर जावा एक्लिप्स। ध्यान देखिए, कोर जावा एक्लिप्स, यहां से इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया और एफ ड्राइव में कोर जावा एक्लिप्स, इसको मैंने लॉन्च कर दिया। लॉन्च लॉन्च मतलब योर सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू स्टार्ट। इट विल टेक लिटिल टाइम।
Okay, look at the first message, clearly message what it is written by Eclipse IDE. Eclipse IDE for enterprise Java and web developers. Eclipse IDE for enterprise Java and web developers. तो ये वेब डेवलपर्स के लिए है, नॉट फॉर स्टूडेंट्स। पहले तो हम ये बता दें, यहाँ पे बहुत लोग मेरे से असहमत हो सकते हैं कि क्या हो रहा है सर, लेकिन इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि एक बार इक्लिप्स साइड में आप काम करेंगे तो फिर एडिट्स में काम करना बहुत बेकार लगेगा। पहले जो बेसिक चीज है उसको सीखना जरूरी होता है। इट्स माय पर्सनल व्यू, हो सकता है हम गलत हो, ये मेरा जिद हो, लेकिन इट्स माय पर्सनल व्यू कि इक्लिप्स आईडी जो होता है इट्स वेब डेवलपर्स, जहां पे आपको अपने काम को कम समय में करना है, कम समय में करना है काम को, एक टास्क को कम समय में लाना है, दिखाना है, तो वहां पर जरूरत पड़ता है आईडी का। पहले आप क्या करोगे, ये आईडी आपको खुल जाएगा, यहाँ मैसेज आ जाएगा इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स। यहाँ पे ये वेलकम मैसेज है, इस वेलकम मैसेज को आप क्लोज कर दोगे, जस्ट क्लोज द वेलकम मैसेज। ठीक है, शायद आप लोग लिखते जा रहे हो मेरे साथ, जस्ट क्लोज द वेलकम मैसेज। ये वेलकम मैसेज क्लोज हो गया। वेलकम मैसेज क्लोज होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइल, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे फाइल न्यू, फाइल न्यू। यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए था जावा प्रोजेक्ट, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो अदर्स में जाएंगे, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है तो आप अदर में जाएंगे। पर आपको ढूंढना क्या है, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, फाइल एरो न्यू एरो जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। अगर पहले वाले में मिल जा रहा है इट्स ओके, नहीं मिल रहा है तो फिर आप अदर में जाके फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट सर्च करोगे। जावा प्रोजेक्ट सर्च होने के बाद नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नेम अभी हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस दे दे रहे हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये जावा एसई 15 और 16 लिया हुआ है। नेक्स्ट, फिनिश। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए बोलता है, डोंट क्रिएट। ठीक है, नेक्स्ट के बाद फिनिश, मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है मॉड्यूल क्रिएट करने, डोंट क्रिएट। सर मॉडल क्या है सर? मॉड्यूल है, अगर आप एक तरह से एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में अगर 3-4 प्रोग्राम्स रखना चाहते हैं, उसके बाद उसको शेयर करना चाहते हैं विद अदर मॉड्यूल्स, तो वो अभी जरूरत नहीं है। मॉड्यूल के थ्रू ना सीखकर हम लोग उसको पैकेज के थ्रू सीखेंगे। बहुत जल्दी हो सकता है, पैकेज का कॉन्सेप्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां हम बताएंगे कि पैकेज के थ्रू ये ज्यादा आसान होता है, मॉड्यूल के थ्रू नहीं। ठीक है, एक मॉड्यूल में आप 3-4 प्रोग्राम्स रख सकते हैं, फिर उस प्रोग्राम को दूसरे मॉड्यूल के साथ शेयर कर सकते हैं, बट इट्स रियली नॉट रिक्वायर्ड, सो डोंट वरी अबाउट इट। इनहेरिटेंस आप फोल्डर बन गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आप इस इनहेरिटेंस फोल्डर पे एक्सपैंड करोगे इसको। आप लोग लिखते जा रहे हो ना ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ, यस सर। गाइस आर यू राइटिंग? या यस सर। yes, yes, fine. So now what you will do, you will extend this inheritance। एक्सटेंड जैसे ही करेंगे आप देखो आपको एक फोल्डर मिलेगा, सब फोल्डर बोल सकते हो, एसआरसी। एसआरसी स्टैंड्स फॉर सोर्स। यू विल गेट फोल्डर कॉल्ड एसआरसी। तो एसआरसी पे यहाँ पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक एसआरसी, राइट क्लिक ऑन एसआरसी, न्यू क्लास, राइट क्लिक ऑन एसआरसी, न्यू क्लास। पहले इनहेरिटेंस को एक्सपैंड करा, जो मैं आपका फोल्डर बना इनहेरिटेंस उसको एक्सपैंड करा, राइट, फिर उसमें एसआरसी आया, एसआरसी फोल्डर पे राइट क्लिक करा, न्यू एंड क्लास, क्लास पे क्लिक करा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्लास का नाम, सपोज एक टेस्ट क्लास हम दे रहे हैं टू टेस्ट माय वन प्रोग्राम टेस्ट, और यहाँ पे मेरे मेन मेथड चाहिए तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स बिकॉज आई नीड द मेन फंक्शन एंड क्लिक ऑन द फिनिश। तो ये आपका एक पब्लिक क्लास टेस्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्गुमेंट्स,
ये स्क्रीन में दिख रहा है आप लोगों को? इसका फॉन्ट बहुत छोटा है, इसका फॉन्ट हम बढ़ा दे रहे हैं। देखिए फॉन्ट कैसे बढ़ाते हैं, अगर साइड में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो हाउ टू इंक्रीज द फॉन्ट इन इक्लिप्स आईडी। तो फॉन्ट के लिए आप जाएंगे विंडो अपीयरेंस, सॉरी विंडो प्रेफरेंसेस, विंडो प्रेफरेंसेस, जनरल, विंडो प्रेफरेंसेस, जनरल, अपीयरेंस, अपीयरेंस, कलर एंड फॉन्ट्स, कलर एंड फॉन्ट्स में जावा, एक्सपैंड जावा, कलर एंड फॉन्ट्स, उसके बाद एक्सपैंड जावा, जावा एडिटर टेक्स्ट, एडिट, make the size 20, click on OK, apply, apply and close। तो ये साइज बढ़ गया। अब ये जो टेस्ट डॉट जावा फाइल यहां पे आपको दिख रहा है ऊपर में, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा, आप इस पे फिर से डबल क्लिक करेंगे तो ये हाफ स्क्रीन में आ जाएगा। डबल क्लिक करने से फुल स्क्रीन, डबल क्लिक करने से हाफ स्क्रीन। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम हाफ स्क्रीन में ही रखते हैं या फुल स्क्रीन कर देते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मैसेज कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे सपोज आई वांट टू गिव सम मैसेज, system.out.println वेलकम हियर। ये मैसेज हमने दिया वेलकम हियर। अब हम इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, तो उसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से। और रन कराने के लिए यहाँ पे रन कराने का बहुत सारा तरीका, तीन तरीका है। एक तो यहां से भी आप रन करा सकते हैं, प्ले बटन जो दिख रहा है, या फिर आप इस पे स्क्रीन पे राइट क्लिक कीजिए और यहां से भी रन एज कर सकते हैं आप, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो जो मर्जी। या फिर यहां से भी कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करके स्मॉल किए और यहां से इनहेरिटेंस पे राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। तो तीन तरीके से रन कर सकते हैं। ज्यादा आसान है कि आपने इसे डबल क्लिक किया और यहां से आप इसको रन करा दें। तो जैसे आपने रन कराया, यू कैन सी इन द स्क्रीन, यहां पे आ रहा है वेलकम हियर। कैन यू सी? यस सर। यस सर। यस यस आपका सर। प्रोग्राम, यस तो आपका प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, टेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब चलिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे जाते हैं। एक प्रोग्राम टेस्ट करके देखें कि सब कुछ काम कर रहा है।